चलिए, स्वागत है आप सभी का। कौन सा करा रहा हूँ मैं? मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 के केस स्टडी नंबर 2 में। सर इतनी सारी केस स्टडीज़ करा दिया ना, कभी भी याद नहीं रहते कि हम कहाँ पे अटके थे। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 केस स्टडी नंबर 2। कल केस स्टडी नंबर 1 ये FCRA वाली कराई थी, अभी हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी नंबर 2। फटाफट से आ जाइए, रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ते हैं, देखते हैं भाई क्या इंस्टीट्यूट ने गुल खिलाया है। ठीक है, MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। DT का क्वेश्चन है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का। फ्रेश फूड्स has approached Indie Bank Limited for a term loan of 5 crores. For this, they need to submit prospective financial statements. Fresh Foods has appointed CA Anil for examination of the prospective financial statements that has been prepared. Which of the following statement is not true regarding examination of the prospective financial statement by CA Anil? ऑडिट में प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है, उसमें से आया है। ठीक है, मेरा गला आज वापस ख़राब है। एक्चुअली मेरा गला 365 दिन में से 400 दिन खराब रहता है। ठीक है, तो प्लीज़ उतना चला लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी ट्रू रिगार्डिंग प्रोडक्ट प्राइसिंग ऑफ इंडिविजुअल फूड आइटम्स। प्राइसिंग मतलब SCNPM का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी, ये वापस SCNPM का क्वेश्चन है। Partners have identified certain critical success factors for fresh foods, like tracking menu offerings that maximize customer satisfaction, customer services related to parameters like complaints, customer response time, etc. Which of the following is true about critical success factor? ये वापस SCNPM का क्वेश्चन है। बात समझ में आई? Descriptive, calculate the book profit of the partnership firm for the purpose of calculation of allowable deduction for salary paid to partners as per income tax. DT का क्वेश्चन है, assessment of partnership firms का। allowable deduction for salary paid to partners for AY 24-25। ये थोड़ा पेचीदा सा, लंबा सा, सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है SCNPM का, तो ये ध्यान से देखना। Fresh foods is in service industry, where it is essential to link strategy to the management of human resources. अब पढ़ते रहो खाली। The partners would like to have a framework based on the building block model to assess performance management. Using the performance management system as proposed by the model, evaluate the following questions. What dimensions of performance should Fresh Food measure? Dimensions are the goals that firm wants to achieve based on its overall strategy, those goals that define its success. How to set standards for the dimensions determined for the fresh foods? What are the characteristics of reward system needed to motivate employees to achieve standards determined for fresh foods? अच्छा, as such अगर ये क्वेश्चन SCNPM में आता, मतलब SCMP में आता, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन है। सर आपको कैसे पता? मुझे पता है ना, मैं ये पढ़ के आया हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए जो May 24 में पर्टिकुलरली जिन्होंने SCNPM नहीं पढ़ा, उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगेगा अभी। फिर हम कंसेप्ट पढ़ लेंगे, फिर हम आंसर क्रैक करेंगे, फिर इजी लगेगा। अभी थोड़ा अजीब है, तो आपको जो भी अजीब लग रहा है ना, उसको एक बार साइड रख दो। ठीक है, थोड़ा अजीब लगेगा, उसको साइड रख दो, बाकी की केस स्टडी पे फोकस करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। Fresh Foods is a popular fast food joint in Bangalore. It was formed by a partnership of 3 friends, Ajay, Biren and Chand. ये लोग इसी को स्टार्टअप बोलते हैं। ठीक है, Ajay and Biren are working partners, while Chand is a non-working partner. Dummy article types. For previous year 23-24, Fresh Foods reported a net profit of 30 lakh before the following deductions. Salary of 50,000 each month payable to Ajay and Biren. Salary of 10,000 payable to Chand. These payments have been authorized by the partnership deed. Depreciation on plant and machinery under section 32 computed 5 लाख, मतलब depreciation computation आपको करके दिया है। Interest on capital at 15% per annum for the capital of Ajay, Biren and Chand. The capital on which interest is to be calculated is 10 लाख, 50 लाख। मतलब जो चंद है उसने पैसे डाल दिए हैं कंपनी में, मतलब फर्म में, और वो फिर सोता रहता है। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर है। अब ध्यान देना। A general survey published in the Food Trade magazine highlighted people's perception about the food served by the food joint across the city. Current food platter was found to be predominantly unhealthy.
people want healthier choices in the menu when they dine out. At the same time they do not want to compromise the taste or presentation of the food item. मतलब लोगों को healthy और टेस्टी खाना चाहिए. सर हेल्दी और टेस्टी अभी 12 बज रहे, ये कोई टाइम होता है ऐसी केस स्टडी देने का? The partners have decided to use this as an opportunity to entirely revamp Fresh Foods as a separate as a specialty restaurant that offers healthier variety of food choices catering to the health conscious customers. मतलब देखो ध्यान दो, एक सेकेंड. पानी पी के पेट भरना पड़ेगा. तो एक मैगजीन में कुछ आर्टिकल छपा कि जो अभी रेस्टोरेंट्स में जो खाना सर्व हो रहा है वो अनहेल्दी है और लोगों को हेल्दियर चॉइसेस में जाना है. तो ये पढ़ के फ्रेश फूड्स ने ऐसा सोचा कि हम अपना जो रेस्टोरेंट बिजनेस है उसको रिवैम्प करके हेल्दियर सेगमेंट में घुसने की कोशिश करते हैं. ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी. अजय, बीरेन एंड चंद आर हैविंग अ मीटिंग टू डिस्कस द वेंचर इन फर्दर डिटेल. The partners would restate their mission as spread health and happiness through craft of cooking, catering to discerning palate that forge long-lasting bonds with our loyal customers. मतलब हमको सिंपल ऐसा करना है, हेल्दी और टेस्टी खाना देना है और एक लॉयल कस्टमर बेस को एस्टैब्लिश करना है. ठीक है, ये लैंग्वेज वगैरह पे ध्यान मत दो, इतना ज़्यादा घूम मत जाना है इस पर. ठीक है, अभी कॉन्वर्सेशन फॉर्म में तीनों पार्टनर की कुछ बातें दी है और इसी में से हमको डेटा निकाल के आंसर देना है. ठीक है, ध्यान दो. ये भाई साहब बोलते हैं अ मेन्यू फोकस्ड ऑन वीगन एंड वेजिटेरियन फूड ऑप्शन एम्फसाइजिंग द नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड हाई क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स वुड गिव अस अ नीश सेगमेंट ऑफ लॉयल कस्टमर्स. हमको लॉयल कस्टमर्स चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, वीगन और वेजिटेरियन फूड देंगे. ठीक है, अभी वीगन फूड कंज्यूम करने वाली जो पब्लिक है वो बहुत कम है और वेजिटेरियन इंडिया में कम है. मतलब मेजॉरिटी ही स्टेट्स में नॉन वेजिटेरियंस का डोमिनेंस है, बैंगलोर में तो है ही. ठीक है, अगर बैंगलोर के कंटेक्स्ट में सोचे तो. ठीक है, तो हमें वीगन और वेजिटेरियन फूड को सर्व करना है और एक लॉयल कस्टमर बेस चाहिए, नीश सेगमेंट. मतलब हमें टारगेट ऐसे लोगों को करना है जो पैसे ना देखे क्वालिटी देखे, पैसे ना देख के क्वालिटी देखे. हमें रस्ते का माल सस्ते में नहीं बेचना है. ठीक है, सिंपल. हाउ वुड वी एबल टू असेस द मार्केट साइज? हम मार्केट साइज कैसे देखेंगे? द फूड इंडस्ट्री इज लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड एंड विद इन देयर इज नो डेटा अवेलेबल फॉर वेंचर्स लाइक आर्स दैट केटरिंग टू हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स. एक तो फूड सेगमेंट पूरा अपना अनऑर्गेनाइज्ड है, ऊपर से नीश मार्केट का कोई मार्केट साइज का डेटा भी नहीं है, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे मार्केट साइज? तो भाई साहब बोलते हैं येस यू आर करेक्ट, देयर इज नो इजी वे टू मेजर द मार्केट साइज. सो लेट अस सेट टू कॉन्कर दिस अनचार्टेड टेरिटरी. मतलब ऐसे मार्केट में घुसते हैं जिसका हमें कुछ पता नहीं. एट इट्स नेसेंट स्टेज, मतलब इनिशियल स्टेज, लेट अस फर्स्ट बिगिन सर्विंग दिस मेन्यू एट आवर रेस्टोरेंट ओनली फॉर लंच एंड डिनर. हमारे पास एक रेस्टोरेंट फैसिलिटी है, उसमें लंच और डिनर में ये नया मेन्यू इंट्रोड्यूस करते हैं. आवर रेस्टोरेंट हैज़ अ कैपेसिटी टू सीट 50 कस्टमर्स एट अ टाइम. ठीक है, तो 50 की सीटिंग कैपेसिटी है. आर रेस्टोरेंट शुड बी फिल्ड एटलीस्ट 90%. इसका 90% ऑक्यूपेंसी अपन को चाहिए, मतलब 45 सीट्स हमेशा अपनी ऑक्यूपाइड होनी चाहिए. इफ नॉट मोर ड्यूरिंग द पीक आवर्स व्हेन इट इज ओपन. मतलब 90% एटलीस्ट तो अपन को कैपेसिटी चाहिए सीटेड. कैपेसिटी 50 की है, अपन को 90% उसका सीटिंग चाहिए. इफ वी आर ओवर बुक्ड रेगुलरली वी कैन इवन कंसिडर एक्सपैंडिंग आवर ऑपरेशंस. मतलब अगर ये 110% हो जाता है कभी गलती से तो हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं. केटरिंग टू हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर इज नॉट ए नोवेल आइडिया. कौन बोल रहा है भाई? ये तीसरा, ये जाड़िया होगा, खुद खाने का शौकीन होगा. Many have tried it out before and failed. Investment in kitchen infrastructure, redoing ambience and decor to match the product offering would cost us at least 5 crore of initial investment. आप बोल रहे हो कि हम अपना ऑपरेशन को पूरा रिवैम्प करना चाहते हैं, हम हेल्थ कॉन्शियस लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप रेस्टोरेंट में घुसो और पहले फोटो पे वड़ा पाव ड्रॉ किया हो तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि हम हेल्दी फूड को दे रहे हैं. तो हमको पूरा जो रेस्टोरेंट का एम्बियंस है उसको चेंज करना पड़ेगा, डेकोर चेंज करना पड़ेगा. डेकोर मतलब पूरा डेकोरेशन चेंज करना पड़ेगा, किचन इंफ्रास्ट्रक्चर नया लेना पड़ेगा, जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगभग 5 करोड़ लगेगा. ऐसा कौन बोल रहा है? तीसरा पार्टनर. कौन? बीरेन. वी वुड नीड टू रेज अ टर्म लोन फ्रॉम द बैंक फॉर दिस.
we need to generate sufficient profits to repay the loan. Due to overall uncertain business conditions after the pandemic, the bank may in turn expect to maintain certain levels of debt service or interest coverage ratio. मतलब बैंक बोलेगा कि आपका डेट सर्विस या तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस रेंज में होना चाहिए, ऐसा बैंक आपको शायद बोल सकता है. Since our menu offerings are going to be unique and healthy, we have some leverage. एक मैं लाइन खा गया. In addition, our benchmark rate has been at least 18% ROI. मतलब अपन को 18% मिनिमम कमाना है. ठीक है. Since our menu offerings are going to be unique and healthy, we have some leverage to charge higher prices from our customers. Again, मैं नीश मार्केट को टारगेट कर रहा हूँ जो पैसे नहीं देखते, क्वालिटी देखते हैं, तो हम उनसे ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं. At the same time, industry margins are under pressure due to inflationary conditions as our input costs, our material, labor and overheads are continuously rising. How do we achieve financial stability? देखो क्या बोला ये भाई, शॉर्ट में बता रहा हूँ. अगर आपको अपना बिजनेस रिवैम्प करना है तो किचन इंफ्रास्ट्रक्चर, डेकोर और एम्बियंस में चेंजेस करना पड़ेगा, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए लगेंगे, जिसके लिए आप बैंक पे जाओगे, लोन लोगे. अब लोन लोगे तो इंटरेस्ट कवरेज और डेट सर्विस का आपको वो शायद एक कोवेनेंट डाल सकता है कि इतना आपको एटलीस्ट मेंटेन करना है. ठीक है. प्लस आपको 18% तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ लो, 18% तो आपको कमाना ही है. ठीक है. आप 18% कमा सकते हो कस्टमर से ज़्यादा चार्ज करके. कस्टमर आपको ज़्यादा पे क्यों करेगा? बिकॉज आप एक नीश मार्केट में हो. लेकिन इंडस्ट्री में आप अगर देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इज अंडर प्रेशर बिकॉज रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड के भाव बढ़ रहे. ठीक है. इतना बोला इस भाई ने, बीरेन भाई ने. ठीक है. तो भाई ये वापस बोले, येस वी आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी. ठीक है. हम पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं. सो लेट अस री इंजीनियर आर मेन्यू. लेट अस सेग्रीगेट आइटम्स बेस्ड ऑन देयर पॉपुलैरिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. क्लास ए आइटम्स विल बी हाईली पॉपुलर एंड प्रॉफिटेबल. तो उन लोगों ने ए में पॉपुलर एंड प्रॉफिटेबल. क्लास बी में हाईली पॉपुलर बट नॉट प्रॉफिटेबल. मतलब बी में पॉपुलर होगा लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं होगा. देखो ये दूसरा पी है प्रॉफिटेबल और ये पहला पी है पॉपुलर. मैं ऐसा ही रफ में बना रहा हूँ आपको. फिर सी में होगा क्लास सी आइटम्स विल बी प्रॉफिटेबल बट नॉट पॉपुलर. मतलब पॉपुलर नहीं है बट प्रॉफिटेबल है. क्लास डी आइटम्स विल बी नीदर पॉपुलर नॉर प्रॉफिटेबल. मतलब डी में कोई भी नहीं होगा, ना पॉपुलर होगा ना प्रॉफिटेबल होगा. This segregation will give us ample information on which items our focus areas should be while knowing how much margin they would generate. मतलब ये ए और सी में हम ज़्यादा काम करेंगे, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है. बी में बी कौन सा है? हाईली पॉपुलर बट नॉट प्रॉफिटेबल, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और डी को कैंसल आउट कर देंगे. तो हमने क्या किया, अपना जो मेन्यू था उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसमें फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमें किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन कम प्रॉफिटेबल है, वगैरह वगैरह. ठीक है. I expect to generate turnover of about 60 lakh in the first year of operation with an increase of at least 3% every year. While this gives us the first mover advantage, we need to constantly re-engineer our menu to beat our competitors who may also start replicating our model and menu. For this, let us take constant feedback from our customers. देखो एक बार आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया, ठीक है, फिर ऐसा हो सकता है ना कॉम्पिटिटर भी देख के सेम चीज़ रेप्लिकेट करने की कोशिश करे, तो फिर हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, इनोवेशन करते रहना है, इम्प्रूव करते रहना है और कस्टमर से फीडबैक लेते रहना है कि भाई हम इसमें क्या एडिशनल चीज़ आपको ऑफर करें. ठीक है. तो ये भाई बोल रहे हैं दिस वुड बी पॉसिबल ओनली इफ़ वी हैव एक्सपर्ट शेफ्स एंड अ टीम दैट कैन हैंडल स्पेशलिटी डिशेस केटरिंग टू डिफरेंट कस्टमर प्रेफरेंसेस इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. अब आपको नई डिशेस लाने हैं तो शेफ्स में भी आपको एक्सपर्टीज लगेगी. Popularity is also driven by the quality of food that we serve. High quality standards drive growth. Periodic weekly quality checks would be required. External certifications from government food inspectors and other recognized agencies would also be required to be met. We need to keep a formal record of the quality issues identified by either customer or the team. देखो क्वालिटी आपने एक बार इम्प्लीमेंट कर दी, फिर कांस्टेंट आपको फीडबैक लेते रहना है अपने कस्टमर से, ये खाना पसंद आया, अच्छा है नहीं है. अगर कस्टमर बोलता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो जो चीज़ अच्छी नहीं है उसका एक बार आप लिख लो, उसका एक फॉर्मल रिकॉर्ड रखो और फिर उस पर फॉलो अप एक्शंस क्या हो रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड रखो. ठीक है. तो
तो ये भाई बोल रहे हैं यस क्वालिटी इज टू बी मैच विद द सर्विस. आर्ट्स इज अ कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस, हेंस personal interacting with the customer should have good people management skills. Complaints would be handled in a professional yet personable manner, for which our customer facing staff would have to be trained. हम एक नीश मार्केट को टारगेट करने जा रहे हैं तो कस्टमर के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन करना पड़ सकता है. जैसे आप 5 स्टार होटल में जाते हो तो आपके साथ वो जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो ऐसे बात करते हैं जैसे आपने उसकी बहन से शादी की है, हेलो सर करते हैं ना. तो उन लोगों को पीपल मैनेजमेंट स्किल्स होता है, तो उसके लिए उन लोगों को ट्रेन किया जाता है. तो ये वही बोल रहा है कि भाई आपको पीपल मैनेजमेंट स्किल के लिए शेफ्स को और कस्टमर फेसिंग जो स्टाफ होता है उनको ट्रेन करना पड़ेगा. ठीक है. सर्विस ऑल्सो मीन्स दैट ऑर्डर्स गिवन बाय कस्टमर शुड बी डिलीवर्ड करेक्टली एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस. एरर्स इन ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस, स्टॉक आउट्स ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट्स. It should be our aim to deliver the food within 15 minutes after placing the order and the food should be warm and fresh. मतलब हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है, टर्न अराउंड टाइम नहीं बोलते, जब ऑर्डर आया तब से जब वो डिलीवर हुआ वो टाइम 15 मिनट्स, मतलब प्रोसेसिंग टाइम, ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम 15 मिनट्स होना चाहिए. टर्न अराउंड टाइम मतलब कस्टमर आया और कस्टमर गया तब का टाइम. ठीक है. 15 मिनट्स शुड बी आर प्रोसेसिंग टाइम. क्या? प्रोसेसिंग टाइम. ठीक है. Rejected raw material, customer rejection of food delivered also need to be tracked. Again, our formal record who also needs to capture these errors, inability to deliver orders, delay in delivery of food. ऐसा बोल रहा है. मतलब ये बोल रहा है कि ऑपरेशंस में आपको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा इन जनरल. फिर ये भाई वापस बोल रहा है COVID pandemic taught us an important lesson on maintaining robust supply chain that can deal with disruptions. For critical resources such as material, labor, etc., our firm should have multiple partners who can provide us the requirements reliably. This will be helpful when we scale up our operations in future. सही बात है. मटीरियल, लेबर और ओवरहेड का जो सप्लाई है वो कॉन्स्टेंटली आपको मिलना चाहिए और रीजनेबल रेट्स पे मिलना चाहिए. इसके लिए आप किसी एक वेंडर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते. आपको मल्टीपल वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे, एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी पड़ेगी ताकि फ्यूचर में अगर आप स्केल अप भी करते हो तो आपको वो वेंडर्स का सपोर्ट मिले. नॉट जस्ट दैट, ये भाई बोल रहा है, नॉट जस्ट दैट आर इंटरनल प्रोसेसेस शुड मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. अच्छा, आपने वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर ली, आपको सब मटेरियल मिल रहा है टाइम पे, लेकिन आपकी इंटरनल टीम अगर उसको ढंग से यूज नहीं कर पा रही तो क्या फायदा. तो आर इंटरनल प्रोसेसेस शुड मेक एफिशिएंट यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज. द ऑर्डर टेकिंग सिस्टम एंड द फूड डिलीवरी सिस्टम शुड वर्क इन सिंक एंड सपोर्ट ईच अदर टू अवॉइड एरर्स एंड स्टॉक आउट्स. आर कोर टीम ऑफ शेफ्स शुड बी adept at minimizing waste and preparing unique dishes in an economic way. मतलब ये internal efficiency की बात हो रही है. We need to build a kitchen infrastructure that support this, providing them with appropriate space, machines and tools for cooking and storage. As regards our marketing process, we may need to use technological solutions like social media platforms to reach out the potential customers. मतलब ऐसा बोल रहा है कि आप एक्सटर्नली तो अपने आप को सिक्योर कर लोगे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के लिए, लेकिन इंटरनल एफिशिएंसी भी आपको देखनी पड़ेगी. अब उसके लिए आपको आपके शेफ्स को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको किचन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और सोशल मीडिया पे आपको अपना मार्केटिंग करना पड़ेगा. High staff attrition is a perennial problem in our industry. Expert chefs are key to our success. Should we explore the possibility of taking out keyman insurance policy on these employees, including us partners? This would not only boost their morale but also help in retaining them. The specialty chefs may also enjoy working with us if we give them sufficient scope of innovation to satisfy customer cost permitting, of course. ठीक है. मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि भाई स्टाफ एट्रिशन से कैसे लड़ेंगे, क्या एक कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें, ऐसा पूछ रहे हैं. Wonderful, I am excited at the range of possibilities this venture can offer. Let us get started by putting in place a system for performance management at various parameters. ठीक है, बड़ी बड़ी बातें होगी. It was decided that Ajay would be in charge of restaurant operations. मतलब supply chain management activities, material, labor, procurement, kitchen operations, supply chain, supply चाय लिखा है, हे भगवान, and quality and other daily business operations. Biren would be in charge of finance, administration and marketing. He will be in charge of activities like negotiating settlement dates with vendors, procuring loans at effective rates, promotional campaigns to build the firm's visibility. Chand would continue to be a non-working partner, giving strategic insights and, if needed, additional capital infusion for any business needs.
There will be separate departments created to form a proper organization structure with clearly defined authority and responsibility. The periodic management of the menu, which will define the food choices based on their profitability and popularity among customers, will be decided jointly by all the three partners. The partnership deed is being modified accordingly to reflect new rules and responsibilities. बहुत लंबा था, पढ़ लो 5-10 मिनट लेके, एंड देन वी विल मूव टू आंसर्स. ठीक है, आंसर के बाद आपको इजी लगेगा, डोंट वरी अबाउट इट. चलो आ गए, पढ़ लिया. ये एक तो रेस्टोरेंट सुन सुन के मेरे को भूख लग गई यार. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू पे ध्यान देना. रिगार्डिंग की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, सबसे पहला स्टेटमेंट, एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फ्रेश फूड्स. करेक्ट, बिकॉज की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, ध्यान दो, अगर वो एम्प्लॉयर को मिलती है, एम्प्लॉयर को, तो टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी. एम्प्लॉय को मिलती है टैक्सेबल अंडर सैलरी. और किसी एम्प्लॉयर रिलेशनशिप से बाहर अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है, टैक्सेबल अंडर आईफोस. ठीक है, तो क्या लिखा है, एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फ्रेश फूड्स. करेक्ट स्टेटमेंट है. अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मैं टैक्सेबल कर रहा हूँ तो इंश्योरेंस पेड का डिडक्शन दूंगा, गवर्नमेंट दे देगी. ठीक है. और तीसरा, बोनस रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज द टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फ्रेश फूड्स. ऊपर एनी सम लिखा है तो एनी सम में बोनस भी आ जाता है. ठीक है. और इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है सी. देखो, इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है सी. तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये नॉट वर्ड को काट दो. तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, इंस्टीट्यूट ने आंसर सी दिया है, तो ये नॉट ट्रू नहीं होगा, ये ट्रू होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, तो नॉट वर्ड काट दो. अच्छा, ऐसे मत गुरो यार, तुम लोग खाना खाते खाते केस स्टडी वीडियोस देखते हो, तो मैं खाते खाते रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्या? 12 बज रहे यार, भूख लगती है. चलो, फ्रेश फूड्स हैज अप्रोच्ड इंडी बैंक फॉर अ टर्म लोन ऑफ 5 करोड़. जैसा ऊपर बोला था कि उसको 5 करोड़ रुपए चाहिए होगा डेकोर वगैरह चेंज करने के लिए. For this, they need to submit prospective financial statements. Correct. बैंक को prospective financial statement, projected financial statement, projections, forecast वगैरह मांगती है. Fresh Foods has approached CA Anil for examination of the prospective financial statements that has been prepared. Which of the following statement is not true regarding examination of the prospective financial statement by CA Anil? देखो, 2 रूल समझ लेना. ये इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से ही मैंने डाला है. ठीक है. सबसे पहला, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब भी चेक करके उस पर कोई रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो रिजल्ट्स शोन इन द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी अचीव्ड और नॉट, इस पे कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता. देखो, फोरकास्ट या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है, ख्याली पुला होता है कि भाई अभी मेरी कंपनी का P&L सपोज 100 करोड़ का है. ठीक है, नेट प्रॉफिट, अब मैं 3% से ग्रो करूँगा. फोरकास्ट. तो फोरकास्ट अचीव होगा या नहीं, इस पे अश्योरेंस देने वाले तुम कौन होते हो? ऐसा इंस्टीट्यूट बोल रहा है सीए को. तो इंस्टीट्यूट ने बोला ऐसी हरकत मत करना. इंस्टीट्यूट ने सीए को क्या बोला, ऐसी हरकत मत करना. मतलब आप ऐसा कोई भी अश्योरेंस मत देना जिससे सामने वाले को लगे कि आप ये कह रहे हो कि आपने जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी है वो अचीव होगी ही, उस पर आप अश्योरेंस दे रहे हो, ऐसी हरकत मत करना. दूसरा, जो भी प्रोजेक्शंस बने उसमें बहुत सारे एस्टिमेट्स यूज़ होते हैं. ठीक है, बहुत सारे अजम्पशंस यूज़ होते हैं. ठीक है, तो उन एस्टिमेट्स या उन अजम्पशंस की एक्यूरेसी को आप वाउच नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर एरिथमेटिकल एक्यूरेसी. मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 3% से ग्रो होगा मेरा कंपनी. ठीक है, तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन नॉट से कि वो जो 3% का जो बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है. एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन नॉट से दैट द अजम्पशन और द एस्टिमेट मेड बाय द मैनेजमेंट इज करेक्ट. ऐसा मैं नहीं बोल सकता. ठीक है, हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी एरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, बाकी अजम्पशंस या फोरकास्ट करेक्ट है, ऐसा मैं वाउच नहीं कर सकता. वाउच मतलब उसकी एक्यूरेसी पे मैं कमेंट नहीं कर सकता. देखो ध्यान दो,
नेचर ऑफ अश्योरेंस रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ध्यान दो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेट टू इवेंट एंड एक्शंस दैट हैव नॉट येट अकर्ड। देखो आप रीजनेबल अश्योरेंस किस पे देते हो, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे। जो चीज़ हो चुकी है, तो जो चीज़ हो चुकी है उसका तो डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास, वो चेक करके आप रीजनेबल अश्योरेंस दे चुके हो। लेकिन जो चीज़ हुई नहीं है उस पर आप कैसे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वाइल एविडेंस मे बी अवेलेबल टू सपोर्ट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एविडेंस नहीं है सपोर्ट करने के लिए। वाइल एविडेंस मे बी अवेलेबल टू सपोर्ट द अजम्पशंस ऑन विच प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड, सच एविडेंस इज इन इटसेल्फ फ्यूचर ओरिएंटेड। मतलब अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि मैंने जो ये अजम्पशंस बनाया है इट इज़ बेस्ड ऑन अ फर्म कॉन्ट्रैक्ट, मेरे पास एक फर्म कॉन्ट्रैक्ट है, उसी के ऊपर मैंने ये अजम्पशंस बनाया है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इन इटसेल्फ हुआ नहीं है, एग्जीक्यूटेड नहीं है, एग्जीक्यूटरी है। बात समझ में आ रही है? वो इन इटसेल्फ फ्यूचर ओरिएंटेड है एंड देयरफॉर स्पेक्यूलेटिव इन नेचर। कैंसिल हो गया, कस्टमर ने बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, ये लो पेनल्टी, मुंह पे मारो, अगर पेनल्टी क्लॉज था तो। एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एविडेंस ऑर्डिनरीली अवेलेबल इन एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो देखो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास डिटेल्स होती है, देयरफॉर एन ओपिनियन एज टू वेदर द रिजल्ट शोन इन द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विल बी अचीव्ड और नॉट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। प्रोहिबिटेड है, ऐसी हरकत नहीं कर सकते आप। दूसरा, अच्छा, क्लॉज 3 सेकेंड शेड्यूल CA एक्ट 1949, इसमें क्या बोला है? स्टेट्स दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मतलब अगर ऐसी हरकत करोगे तो आपको पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लगाया जाएगा। कौन सी हरकत? इफ ही परमिट्स हिज नेम or name of his firm to be used in connection with an estimate or earnings contingent upon future in a manner which may lead to believe that he vouches the accuracy of the forecast। मतलब सिंपल, यहाँ पे ऐसा बोल दिया कि गिल्टी और यहाँ पे ऐसा बोल दिया कि आप ऐसा अश्योरेंस नहीं दे सकते। देखो MCQ में 2 क्वेश्चन पूछे और 2 क्वेश्चन के आंसर का सोर्स अलग है। एक का क्लॉज 3 है, क्लॉज 3 सेकेंड शेड्यूल CA एक्ट 1949, और दूसरा है आपका SAE 3400, SAE 3400, ठीक है। इसमें आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। आपको पढ़ लेना है। मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको बता दिया कि ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। फिर अब क्वेश्चन पढ़ लो। Which of the following statement is not true regarding examination? CA Anil need not to be a statutory auditor of fresh foods to accept the engagement to examine the prospective financial statement. दूसरा, CA Anil can express an opinion on whether the result shown in the prospective financial information can be achieved or not, नहीं दे सकते। CA Anil can vouch on the accuracy of projections, नहीं कर सकते, ठीक है। CA Anil could consider sources of information considered by the partners for the purpose of preparing the financial statements, prospective financial statements, their adequacy, reliability of underlying data including data derived from third parties। मतलब देखो, सबसे पहला तो एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही आप ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिव्यू कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी है नहीं। दूसरा, आप मैनेजमेंट से ये सब इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कि आपने ये प्रोजेक्शंस कैसे बनाए, आप मुझे बताओ। लेकिन 2 चीज़ आप नहीं कर सकते, वाउचिंग द एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेट्स, और दूसरा ये इवेंट्स जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो होंगे ही, ऐसा आप अश्योरेंस नहीं दे सकते। तो कौन से नॉट ट्रू है? 2 and 3, 2 and 3। 3 में भी यहाँ पे इन लोगों ने 4 कर दिया है। इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक्स तो मतलब ठीक है, चलो नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। Which of the following statement would be not true as regards to product pricing for individual food items? देखो ध्यान दो, चारों स्टेटमेंट पढ़ लेना। Standard costing techniques may be used to compute the cost of individual food items। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों? इंडिविजुअल फूड आइटम्स भूल जाओ, आप इंडिविजुअल यूनिट पकड़ लो मैन्युफैक्चरिंग का। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेन, ठीक है, तो इस पेन का मैं कॉस्ट कैसे मॉनिटर करूँगा? मैंने ऐसा बोल दिया कि 1 यूनिट ऑफ मटेरियल प्लस 1 आवर ऑफ लेबर प्लस 1 आवर ऑफ ओवरहेड, ये इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड कॉस्ट में अचीव नहीं हुआ तो प्लस और माइनस वेरिएंस, तो एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। जो होना चाहिए ये वो है जो होना चाहिए, ये वो है जो हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस, अगर जो होना चाहिए उसमें मैं डिफरेंस ऐड कर दूं तो एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। तो मैं इंडिविजुअल आइटम्स का एक्चुअल कॉस्ट कैसे मॉनिटर करूं? स्टैंडर्ड प्लस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्लस वेरिएंस।
ठीक है, ये बात मैंने पहले किसी और केस स्टडी में बताई हुई है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कैसे यूज होता है। दूसरा, टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक्स may be used by for managing the profitability of food items in having popular close substitutes even if they are not healthy than that are offered by the competitors। देखो, टारगेट कॉस्टिंग के कंसेप्ट वीडियो में बताया है कि टारगेट कॉस्टिंग कहाँ पे प्रिवेलेंट है या कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे कंपटीशन बहुत टाइट हो, कि आप प्राइस को आप एज एन इंडिविजुअल एंटिटी या इंडिविजुअल सेलर प्राइस को डिक्टेट नहीं कर पा रहे हो, आपकी प्राइस मार्केट ड्रिवन आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लेस की 10 रुपये की चिप्स लेने जाते हो, ठीक है, तो 10 रुपये की चिप्स वाले बहुत सारे लोग हैं जिसमें एक क्वांटिटी के लिए 10 रुपये चार्ज किए जाते हैं। तो अभी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो उसी क्वांटिटी को 20 रुपये में बेच पाए, तो लोग क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में जहाँ पे प्राइस कैन नॉट बी डिक्टेटेड, आपको एक मार्केट प्राइस लेनी है, आपको अपना टारगेट रिटर्न उसमें से माइनस करना है, तो आपकी टारगेट कॉस्ट आएगी, उस वीडियो में बता रखा है मैंने। और टारगेट कॉस्ट वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर होगा। अगर टारगेट कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है एक्चुअल कॉस्ट से, तो उन डिफरेंस को कॉस्ट गैप बोलते हैं, और आपका टारगेट होना चाहिए कि कॉस्ट गैप को मिनिमाइज करना। ये पूरा कंसेप्ट बता दिया वापस से। तो ये टारगेट कॉस्टिंग, ये लाइन भी सही है, ठीक है, ये लाइन भी सही है। प्रोडक्ट प्राइसिंग to be used to determine the expected revenue for yearly budgetary planning which can be determined based on the relevant costing techniques। बाद में एक बार डिस्कस करते हैं। If the price quality perception or the unique value perception for certain food item is high, customers will be less price sensitive। ये चीज़ भी सही है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल का आईफोन ले लो, उसका जो प्राइस क्वालिटी परसेप्शन या यूनिक वैल्यू, जैसे आईफोन का जो कैमरा है वो बहुत अच्छा आता है, तो उसका यूनिक वैल्यू है वो हाई है, ठीक है, तो कस्टमर्स विल बी लेस प्राइस सेंसिटिव। अगर 65-70 का आईफोन आ रहा है, कस्टमर आराम से ले लेगा, प्राइस नहीं देखता एक लेवल पे। ये स्टेटमेंट क्यों मेरा आंसर बन रहा है, मतलब व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। केस स्टडी 11 में मैंने इसका कंसेप्ट बताया हुआ है। केस स्टडी 11 आप लोग रिविजिट कर सकते हो। रेलेवेंट कॉस्टिंग कब प्राइसिंग में यूज होता है, रेलेवेंट कॉस्टिंग कब प्राइसिंग में यूज होता है, ओनली एंड ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कस्टमर सिर्फ और सिर्फ एक बार मेरे पास आया है, सिर्फ और सिर्फ एक बार मेरे पास आया और मैं उसको लूटने वाला हूँ। कोई कस्टमर आपके पास एक बार आया है, आपको पता है ये वापस कभी नहीं जाएगा, तो आप एक हिसाब लगाते हो ना कि ये चीज़ मेरे को कितने में पड़ रही है और इसको मैं क्या प्राइस और प्रीमियम चार्ज करूँ। केस स्टडी 11 में मैंने आपको ये डिटेल में बता रखा है कि वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रेलेवेंट कॉस्टिंग का एप्लीकेशन कैसे होता है। यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि रेलेवेंट कॉस्टिंग का प्राइसिंग में कब इम्प्लीकेशन आएगा या प्राइसिंग में कब यूटिलाइजेशन होगा, जब और सिर्फ जब जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरा वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि मैंने वहाँ पे एक बात बताई थी कि रेलेवेंट कॉस्टिंग में आप सिर्फ इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कंसिडर करते हो, जहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड को आप इग्नोर करते हो। अगर, और मैंने वहाँ पे लाइन बोली थी एक, अगर केस स्टडी 11 आपको याद हो तो या वापस देख लो, भाव टू भाव। रेलेवेंट कॉस्टिंग मतलब भाव टू भाव बेचना। अब आप रेगुलर बिजनेस में भाव टू भाव नहीं बेच सकते, बिकॉज वहाँ पे आपके फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर नहीं होंगे, ठीक है, आपके फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर नहीं होंगे, बिकॉज रेलेवेंट कॉस्ट आप जब निकालते हो तब फिक्स्ड ओवरहेड को इग्नोर करते हो, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग प्राइसिंग में सिर्फ और सिर्फ तब यूज होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो। रेगुलर प्राइसिंग में आई कैन नॉट यूज रेलेवेंट कॉस्टिंग, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। रेलेवेंट कॉस्टिंग का लेक्चर भी मैंने डाला हुआ है, वो भी देख लेना। SCNPM की प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है, वो देखना तो आपको पता चलेगा। Which of the following is not a value added activity? Inspection is not a value added activity। अगर कोई मटेरियल आया है और मुझे उसको इंस्पेक्ट करना पड़ रहा है, मतलब वेंडर उसको इंस्पेक्ट करके नहीं दे रहा, ये वेंडर का ड्यूटी होना चाहिए टू इंस्पेक्ट। जस्ट इन टाइम आप जब पढ़ोगे, जस्ट इन टाइम, तब आप उसमें एक लाइन पढ़ोगे कि जो मेरा वेंडर है वो सीधा मटेरियल मेरे मशीन पे लोड करता है। सीधा मटेरियल कहाँ पे लोड करता है? मेरे मशीन पे। उस मटेरियल का इंस्पेक्शन नहीं होता। इंस्पेक्शन कहाँ पे होता है? जब एक बार मैं वेंडर के उधर जाता हूँ, मैं खुद एज अ बायर आई विजिट द वेंडर, उसकी सारी प्रोसेस को चेक करता हूँ और फिर देखता हूँ कि इस वेंडर से जो माल आएगा क्या उसको बार बार इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। इफ यस, मैं उस वेंडर से माल लूँगा ही नहीं। मैं ऐसे वेंडर से माल लूँगा जिसका माल मुझे बार बार चेक ना करना पड़े, बिकॉज
इंस्पेक्शन इज़ अ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, मुझे उसको एलिमिनेट करना है। मुझे एक मुझे एक ऐसा वेंडर चाहिए, मुझे एक ऐसा वेंडर चाहिए जिसका माल मैं सीधा मशीन पे लोड कर दूँ, भरोसे वाला वेंडर चाहिए। ये भरोसा बैठाने के लिए मैं क्या करूँगा, वेंडर के उधर जाके चेक करूँगा उसकी सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। ये मैंने थोड़ा एडिशनल ज्ञान दे दिया। तो इंस्पेक्शन इज अ नॉट अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी। यूजिंग काइजन कॉस्टिंग मेथोडोलॉजीज टू रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम इन डिलीवरिंग द कस्टमर ऑर्डर। देखो काइजन कॉस्टिंग आपको नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है ना कि कुछ भी करके अगर मैं जो टर्न अराउंड टाइम है वो कम कर रहा हूँ तो वैल्यू एडिंग है। रीडूइंग नॉन वैल्यू एडिंग, वेट टाइम नॉट वैल्यू एडिंग। तो 1, 3 and 4 आर माई नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। इंस्पेक्शन इज अ नॉन वैल्यू एडिंग, जिट एलिमिनेट्स इंस्पेक्शन। जिट हम क्यों इंप्लीमेंट करते हैं, इंस्पेक्शन टाइम को रिड्यूस करने के लिए। द पार्टनर्स हैव आइडेंटिफाइड सर्टन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स for fresh foods like tracking menu offerings and maximize customer satisfaction, customer service related parameters like complaints, customer response time etc. which of the following is true about CSF? देखो CSF मतलब ओवरऑल स्ट्रैटेजी के लिए कौन से फैक्टर्स क्रिटिकल है। ओवरऑल स्ट्रैटेजी के लिए रिड्यूसिंग कॉस्ट के लिए अलग होता है, फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अलग होता है। तो स्ट्रैटेजिक सक्सेस, ओवरऑल स्ट्रैटेजिक सक्सेस के लिए क्या रेलेवेंट है उसको CSF बोलते हैं। ये याद रखने का टर्मिनोलॉजी है, याद रखने का है, ठीक है। MCQs हो गए। लेट्स मूव टू डिस्क्रिप्टिव। Calculate the book profit of the partnership for the purpose of calculation of allowable deduction for salary paid to partners as per income tax. Allowable deduction for salary paid to partners for assessment year 24-25. Ideally ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए, आइडियल, बिकॉज बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन में मैं आपको क्या नया बताऊंगा। फिर भी आ जाओ, चलो देखो। प्रॉफिट बिफोर डिडक्शंस 30 लाख था। सैलरी ऑफ payable to partner Ajay and Biren 50-50. Salary 10,000 payable to Chand. Payment authorized by partnership deed है। Depreciation 5 लाख computed. Interest on capital at 15% देना है, तो ध्यान दो। 30 लाख का प्रॉफिट गिवन है, उसमें से 5 लाख का डेप्रिसिएशन तो हटा ही दोगे एक लेवल पे, तो 25 लाख आएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% उन लोगों ने डीड में डाला हुआ है, लेकिन अलावेबल कितना है 12%। तो 10 का 12%, 10 का 12%, 50 का 12%, 10 का 12% 120, 10 का 12% 120, 50 का 12% 6 लाख, ये हटा देंगे तो 16,60,000 विल बी माई बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट में 3 लाख, पहले 3 लाख तक 1.5 लाख या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर अलाउड होता है, और बाकी के 60% अलाउड होता है, तो 8,16,000, तो 10,86,000, 10,86,000 इज माई मैक्सिमम अलावेबल रेम्यूनरेशन, ठीक है। और मैंने सैलरी दिया कितना है उससे कंपेयर करके आप डिफरेंस निकाल लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन पे मुझे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये आप खुद कर लो यार, इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये DT में 3 मार्क्स के लिए भी नहीं आता, देख लो आप अपने हिसाब से। मुझे इंटरेस्ट है दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन 7 में। ध्यान दो। Fresh foods is in service industry, where it is essential to link strategy to the management of human resources. The partners would like to have a framework based on the building block model to assess the performance management. Using performance management system as proposed to by the model, evaluate the following questions. अच्छा देखो, ध्यान दो। अब यहाँ पे आ जाओ। आपको उठानी है SCNPM की मॉड्यूल 2, उसमें एक चैप्टर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। उसमें बहुत सारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मॉडल्स प्रिस्क्राइब्ड है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मॉडल मतलब क्या? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जनरली 2 टाइप के लेवल पे होता है, फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल। फिनेंशियल में आप क्या देखते हो कि कितना कंपनी कमा रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या रेवेन्यू हो रहा है, क्या ROI है, ठीक है, वगैरह वगैरह, हटा दो। फिनेंशियल्स हमको पता है। बहुत सारे नॉन फिनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस्ड स्कोर कार्ड जो RTP केस स्टडी 1 में आया था। RTP केस स्टडी 1 में उसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। देखो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल मतलब क्या? एक मेरी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है,
ठीक है, कि मेरे बिजनेस को मुझे इस डायरेक्शन में लेके जाना है, इस तरीके से चलाना है वगैरह। और एक होती है मेरे ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो, बिजनेस का सबसे क्रिटिकल रिसोर्स होता है, जो सबसे क्रिटिकल रिसोर्स होता है, जो कभी बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज नहीं होता, वो है ह्यूमन रिसोर्स। बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स पे अपना कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स एज सच आपकी बैलेंस शीट में कहाँ दिखता है, कहीं नहीं दिखता। लेकिन सबसे क्रिटिकल रिसोर्स आपके बिजनेस का कौन सा है सर? ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स को मुझे इस तरह से मैनेज करना है, ह्यूमन रिसोर्स को मुझे इस तरह से मैनेज करना है जिससे मेरी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है वो अचीव हो जाए। ह्यूमन रिसोर्सेज को मुझे इस तरह से मैनेज करना है जिससे मेरी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी अचीव हो जाए। ये पर्पस है किसका? बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का। तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल आपको एक चीज़ बताता है कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर पाओगे, आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करोगे जिससे आप अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को अचीव कर लो। बात समझ में आई? फिट्जगेराल्ड एंड मून मॉडल भी बोलते हैं। तो अगर आपको कभी इंस्टीट्यूट कंफ्यूज करने के लिए फिट्जगेराल्ड एंड मून मॉडल बोले तो उसका मतलब बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। अच्छा, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी अचीव करनी है और ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए पहले कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी आपको बतानी तो पड़ेगी, किसको? एम्प्लॉयज़ को। तो इस मॉडल में कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को बताया गया है, टर्मिनोलॉजी यूज हुई है डायमेंशंस। डायमेंशन मतलब गोल्स, डायमेंशन मतलब गोल्स, गोल्स मतलब आपको क्या अचीव करना है, गोल्स मतलब क्या आपको अचीव करना है। अच्छा, गोल्स किस एरिया में अचीव करने हैं, किस एरिया में अचीव करना है, एरियाज, और क्या रिजल्ट चाहिए, व्हाट रिजल्ट यू वांट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मुझे सीए की एग्जाम क्लियर करनी है, जिसके लिए मुझे आईबीएस के पेपर में एग्जाम्शन चाहिए। तो ये जो गोल हुआ, ये हुआ सीए एग्जाम क्लियर करना, और डिटर्मिनेंट हुआ वो क्या हुआ कि आईबीएस क्लियर करना है। और रिजल्ट क्या है कि भाई मुझे 60+ लाना है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? गोल क्या हुआ? सीए क्लियर करना है। डिटर्मिनेंट क्या हुआ? आईबीएस क्लियर करना है। और रिजल्ट क्या है? 60+ लाना है। तो रिजल्ट इज एसेंशियली इन सम न्यूमेरिक वैल्यू या तो कंपैरेटिबिलिटी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, कौन से 4 एरियाज में ये मॉडल बोलता है? क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मतलब अच्छा, ये मॉडल एसेंशियली सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस पे यूज़ होता है। तो मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में आपको बताता हूँ। क्वालिटी मतलब मुझे क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करनी है, किसको? मेरे कस्टमर्स को। फ्लेक्सिबिलिटी, सर्विस इंडस्ट्री थ्राइव्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर जो सर्विस बोलेगा वो सर्विस मुझे उसको देनी पड़ेगी। अब आप कल उठ के बोलो सर आईबीएस हटाओ, हमको लॉ पढ़ाओ, तो आई नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ कि मैं लॉ के भी आपको नोट्स और लेक्चर्स दे पाऊँ। तो आई हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ। इनोवेशन, मार्केट में बहुत सारे लॉ के फैकल्टीज है, आई नीड टू बी यूनिक टू प्लेस माई सेल्फ इन दैट मार्केट। एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मेरे पास जो भी रिसोर्सेज है उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है। अगर इन 4 एरियाज पे मैं काम करता हूँ तो मुझे उससे 2 टाइप के रिजल्ट्स चाहिए, 2 टाइप के रिजल्ट्स। फिनेंशियल परफॉर्मेंस तो चाहिए, साथ में कॉम्पेरेटिव परफॉर्मेंस भी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे आप ऐसा बोलो कि सर कल से लॉ के लेक्चर्स पढ़ाना, मैं बोला ठीक है चलो कल से लॉ पढ़ाएंगे। तो लॉ के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके मैं कुछ कमा रहा हूँ, हालांकि ये सब तो सब सोशल सर्विस है यार, आप लोग मेरी फैमिली हो, बट एज एन एग्जाम्पल क्या मैं उससे कुछ कमा रहा हूँ? नंबर 1। और नंबर 2, कॉम्पिटिटिव मार्केट या कॉम्पिटिटिव कंडीशन में मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मैं किसी एक्स फैकल्टी, वाई फैकल्टी, जेड फैकल्टी के कंपैरिजन में मैं कैसा लॉ पढ़ा रहा हूँ। ये 2 रिजल्ट मुझे चाहिए। एज सच मुझे पैसे ज़्यादा कमाना है और कॉम्पिटिटिव रहना है, ठीक है। ये मेरे हो गए गोल्स। तो गोल्स को 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दो, गोल्स में 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दो, डिटर्मिनेंट्स और रिजल्ट्स। डिटर्मिनेंट्स में 4 एरियाज में आपको इम्प्रोवाइज करना है। सबसे पहला क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी देनी है। यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ। तीसरा, इनोवेशन, आपको कुछ ना कुछ इनोवेशन करना है। चौथा, आपको अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, जिससे 2 टाइप के रिजल्ट्स आपको चाहिए। आपको फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म करना है और कॉम्पिटिटिव जो फोर्सेस है उसमें भी आगे रहना है, ठीक है सर। तो आपने अपने एम्प्लॉयज को ये बता दिया कि दीज आर आवर डायमेंशंस, दीज आर आवर डायमेंशंस। वो बोला ठीक है। अब
किसी भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड मतलब एक्चुअल को किससे कंपेयर करोगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस तो मेरा एम्प्लॉय करेगा, बट उसके सामने कुछ कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड्स तो होने चाहिए। और अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में दो चीज़ें होती है, स्टैंडर्ड्स मतलब कंपैरिजन किससे हुआ, और रिवॉर्ड क्या मिला। और रिवॉर्ड के साथ आप पेनल्टी भी जोड़ दो, मतलब नेगेटिव रिवॉर्ड, बुरा काम किया तो पेनल्टी, अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड। और स्टैंडर्ड से उस चीज़ को कंपेयर करोगे। अच्छा, स्टैंडर्ड्स में होनी चाहिए इक्विटी, मतलब अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बना रहा हूँ, मेरे अंदर 3 डिपार्टमेंट है, तो स्टैंडर्ड्स तीनों डिपार्टमेंट को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। मतलब ये जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो फेयर होने चाहिए फॉर एवरी एम्प्लॉय, ये फेयर होने चाहिए। दूसरा, अचीवेबल होने चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल सकता एक काम करो, अभी 2 तारीख से FR का पेपर है, अभी एक काम करो सारे लेक्चर्स देख लो, अचीवेबल नहीं है। स्टैंडर्ड है, अचीवेबल नहीं है, ठीक है। और तीसरा, उस स्टैंडर्ड की ओनरशिप होनी चाहिए। मतलब मैं अगर एक्स डिपार्टमेंट को बोलता हूँ कि ये तेरा स्टैंडर्ड है, तो उसको वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सबसे पहला उसको वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब उस स्टैंडर्ड की सामने वाला बंदा ओनरशिप लेना चाहिए कि हाँ ये मुझे एक्सेप्टेड है। तो जो मेरे स्टैंडर्ड्स है वो कैसे होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, इक्विटेबल होने चाहिए सारे डिपार्टमेंट में। मैं किसी भी डिपार्टमेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता स्टैंडर्ड सेट करने में कि इसको बहुत हाई टारगेट्स दो, इसको लो टारगेट्स दो, इसको मीडियम टारगेट्स दो, ऐसी हरकत नहीं कर सकता। दूसरा, अचीवेबल होने चाहिए, हाइपोथेटिकल नहीं होने चाहिए, हवाबाजी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, मैंने जो स्टैंडर्ड बनाए वो सामने वाले को एक्सेप्टेबल होने चाहिए, मतलब सामने वाला उस चीज़ का ओनरशिप लेना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड्स उनको एक्सेप्ट हो गए, उन लोगों ने परफॉर्मेंस किया, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल किया, सब ने अच्छा परफॉर्म किया, तो उनको रिवॉर्ड दोगे। तो रिवॉर्ड कैसे होने चाहिए, जो मोटिवेशन जनरेट करे फर्दर अच्छा परफॉर्म करने के लिए। आप अगर आर्टिकलशिप के लिए जाते हो, आपने बोला कि सर मैं ऑडिट अगर 10 दिन में ख़त्म कर दूँ तो क्या दोगे, तो आपका पार्टनर बोला कि एक काम कर 100 रुपये ले जाना, तो आपको वो काम करने में मोटिवेशन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो रिवॉर्ड्स ऐसे होने चाहिए, रिवॉर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो मोटिवेशन पैदा करे काम अच्छा करने के लिए। दूसरा, क्लियर होने चाहिए, एम्बिग्यूअस नहीं होने चाहिए। आपने पार्टनर को बोला 10 दिन में 10 रिटर्न फाइल कर दूंगा, क्या अवार्ड दोगे, तो पार्टनर बोला दूंगा, देखते नहीं, क्लियर होना चाहिए। योर रिवॉर्ड शुड बी क्लियर, अनएम्बिग्यूअस और कंट्रोलेबिलिटी। मतलब आपको उसी चीज़ के लिए रिवॉर्ड देना है या उसी चीज़ के लिए पैनलाइज करना है जो सामने वाले के हाथ में थी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा बोला कि 10 दिन में 10 रिटर्न फाइल कर दूंगा, ठीक है। अब 10 में से 7 जो रिटर्न्स थे उसमें सामने वाला OTP नहीं दे रहा है, बच्चों वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि नहीं दे रहा है OTP। अब वो OTP नहीं दे रहा है तो मेरे हाथ में थोड़ी है यार, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है तो मेरे हाथ में थोड़ी है। जो मेरे हाथ में है, मैंने 3 दिन में अगर 3 रिटर्न भर दिए, 10 में 10 भरने थे, मैंने 3 में 3 भर दिए, तो 3 का तो रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए ना। 7 की पेनल्टी मुझे नहीं मिलनी चाहिए क्यों, वो मेरे हाथ में नहीं था, वो साला मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। बात समझ में आई। तो रिवॉर्ड्स कैसे होने चाहिए, जो मोटिवेशन पैदा करे, जो क्लियर हो, अनएम्बिग्यूअस हो और जो कंट्रोलेबल हो, ठीक है। तो ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल हुआ। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल मतलब वेरी सिंपल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है जो मुझे अचीव करनी है, जिसके लिए मुझे ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्सेज को इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशंस, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और मुझे उनको ये बताना है कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए। अब ह्यूमन रिसोर्सेज में मैंने कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बता दी, ह्यूमन रिसोर्सेज में मुझे स्टैंडर्ड सेट करना है और रिवॉर्ड सेट करने हैं। स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए सर, इक्विटेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए और सामने वाला उसकी ओनरशिप लेना चाहिए। रिवॉर्ड्स कैसे होने चाहिए, मोटिवेशन जनरेट करे ऐसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, और जो कंट्रोलेबल है उसी फैक्टर के लिए उसको रिवॉर्ड और पेनलाइज करना चाहिए, ठीक है। आपको एक बहुत खुश खबर दूं, अगर आप बहुत खुश हो जाओगे नवंबर 23 तक ये सब चीज़ें ना रटनी पड़ती थी। मतलब ऐसा बैठ के ऐसा रटते थे लोग, और वो फैकल्टीज उछल के पढ़ाते थे, रटवाते थे। अब ये सब चला गया सॉरी, अब ये सब चला गया, कुछ रटना नहीं है। समझ लिया, वेरी गुड। रटना नहीं है, हमें रटना पड़ता था। जब मैंने एग्ज़ाम दी थी, मैंने ये सब बैठ के रटा था। मेरे से हुआ नहीं था रट्टाफिकेशन, बट मैंने ट्राई किया था, ठीक है।
जो केस स्टडीज आती थी SCNPM में, ये क्लासिक SCMP की केस स्टडी है, क्लासिक। उसमें क्या देता था ये लोग कि क्वेश्चन में कोई सिचुएशन दे दी, ठीक है, सामने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल रख दिया, क्वेश्चन पूछ लिए और बोलेंगे कि केस स्टडी में जो चीज़ें दी है उसको इस चीज़ से रिलेट करके लिखो। अब ये 7 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जनरली मार्क्स किसके होते थे, ये सब लिखने के, ये सब जो पॉइंट्स है ना, ये लिखने के मार्क्स होते थे। बिकॉज ये लिख लो तो ही बड़ी बात है, फिर रिलेट करोगे उसके 1-2 मार्क्स होंगे, तो ये लिख लो वही बड़ी बात है। हम तो याद करके रट के लिखते थे, तो ये सब लिखने के मार्क्स होते थे। रिलेट करने में आपको क्या करना है कि जो भी केस स्टडी में दिया है उस कॉन्टेक्स्ट में आपको 2 या 3 लाइन्स लिखनी है। अच्छा, ये हो गया रेस्टोरेंट बिजनेस का केस स्टडी। अब बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल सर्विस इंडस्ट्री का केस स्टडी है, तो मैं IT में भी लगा सकता हूँ, वो तो मैं इंजीनियरिंग में भी लगा सकता हूँ, वो तो मैं CA फर्म की सर्विसेज में भी लगा सकता हूँ। तो ये मॉडल तो हर जगह अप्लाई होता है, और आप एज स्टूडेंट्स हर फील्ड के तो एक्सपर्ट्स हो नहीं, तो आपको तो कंसेप्ट पता है। तो मार्क्स किसके हैं, कंसेप्ट समझने के और कंसेप्ट लिखने के, ठीक है। तो मेजॉरिटी वेटेज इज ऑन कंसेप्ट, प्लस आप जो भी रिलेट करते हो उसके एडिशनल, जो भी 2-3 मार्क्स उसके एडिशनल रिलेट करने के होंगे। बिकॉज अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, आपको कंसेप्ट आ गया, बड़ी बात है, ठीक है। तो मार्क्स तो ये सब लिखने के हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, व्हाट डायमेंशंस ऑफ परफॉर्मेंस शुड फ्रेश फूड मेजर, ये 4 डायमेंशंस, ठीक है। हाउ टू सेट स्टैंडर्ड्स, इक्विटेबल, अचीवेबल, ओनरशिप, ऐसे स्टैंडर्ड सेट करना है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम, मोटिवेशन, क्लियर, कंट्रोलेबल। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, बात समझ में आई, कंसेप्ट समझ लिया, फिर तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया तो ये लिख के आ जाना, प्लस 2 या 3 लाइंस ऊपर की केस स्टडी को नीचे से रिलेट करने के लिए। इसका मैंने आपको आंसर लिख के नहीं दिया है इंस्टेड मैंने जो भी चीज़ें रेलेवेंट थी वो इन्हीं के आंसर में हाईलाइट कर दिए, बिकॉज इतना लिखने बैठता मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोगों के पास भी नहीं, ठीक है। तो फटाफट से हम इंस्टीट्यूट के आंसर को ग्लांस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन का थीम समझ लिया, लेट्स मूव टू द आंसर। देखो डायमेंशन कैसे होना चाहिए, तो डायमेंशंस आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू रिजल्ट एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। रिजल्ट कैसा होना चाहिए, सबसे पहला फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मुझे 18% का ROI चाहिए, वो मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होना चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन मेरा अंडर प्रेशर है, ठीक है, तो मुझे ट्रैक करनी है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को वेरी क्लोजली। तो मुझे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या करना है, अपना 18% का टारगेट रिटर्न देखना है, और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है, बिकॉज इंडस्ट्री में मटेरियल लेबर ओवरहेड का प्राइस बढ़ रहा है। कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस में मुझे कैसा करना है, देखो फ्रेश फूड्स वांट टू बी अ नीश जॉइंट इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट, देयर बेसिस फॉर कंपटीशन इज प्रोवाइडिंग हेल्थियर फूड चॉइसेस बेस्ड ऑन वेजिटेरियन एंड वीगन डाइट। देखो मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ उसमें वेजिटेरियन एंड वीगन डाइट के नीश मार्केट्स को मुझे कैटर करना है। तो मुझे सबसे पहले कॉम्पिटिटिव पोजीशन में अगर मुझे एक्सेल करना है तो मुझे 50 सीट्स जो मेरी है उसका 90% का मेरा टारगेट है, ये अचीव करना पड़ेगा। अगर कस्टमर्स कॉम्पिटिटर छोड़ के मेरे उधर आते हैं और मेरी सीट्स ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब आई एम डूइंग गुड, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ देयर 50 सीट कैपेसिटी एट द रेस्टोरेंट, द बेंचमार्क कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज एटलीस्ट 90% वुड इंडिकेट देयर इज सफिशिएंट डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। देयर मतलब मेरी प्रोडक्ट की, मतलब आप सिंपल समझो ना कि जियो के सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है, मतलब जियो अच्छा काम कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। Segregation of offering into ABCD would help the management to identify a good mix of popular and profitable items. It will help it to develop its competitive edge. मैं अपने प्रोडक्ट्स को बाइफरकेट कर दूंगा तो मुझे पता चलेगा ना कंज्यूमर क्या ज़्यादा है, कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है, क्या छोड़ रहा है, और फिर मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, ठीक है। तो हमने रिजल्ट्स डिस्कस किए, फाइनेंशियल एंड कॉम्पिटिटिव। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स में 4, क्वालिटी, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्वालिटी में क्या करना है, मुझे अच्छी क्वालिटी का और अच्छे टेस्ट वाला खाना देना है। द फर्म इज फोकस्ड ऑन ऑफरिंग हाई क्वालिटी फूड टू इट्स कस्टमर्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक वीकली चेक्स, एक्सटर्नल सर्टिफिकेशंस फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर ऑथोराइज्ड एजेंसीज। देखो ऊपर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं कि एक काम करो, क्वालिटी को आप मॉनिटर करते रहो, प्लस आप गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशंस ले लो, आप इंटरनल चेक्स कर लो, ठीक है। और फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ क्वालिटी इश्यूज, जो भी क्वालिटी इश्यूज आ रही है उसका एक फॉर्मल रिकॉर्ड रखो। कस्टमर फेसिंग स्टाफ को ट्रेन करो, एजुकेट करो कि उनको कैसे बिहेव करना है अपने कस्टमर से।
इससे आप अच्छी क्वालिटी दे पाओगे। तो क्वालिटी में क्या बात हुई कि आप अच्छी क्वालिटी मॉनिटर करो, एक्सटर्नल एजेंसीज से, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट से, उससे आप सर्टिफिकेशन लो, इंटरनल क्वालिटी चेक्स बार बार करते रहो हैं। फिर जो कस्टमर का फीडबैक है उसको आप रिकॉर्ड करो, उस पर काम करो, एंड जो कस्टमर सेंट्रिक जो आपका स्टाफ है उनको ट्रेन करो। या इससे आप अच्छी क्वालिटी दे पाओगे। इनोवेशन, देखो मुझे हेल्दी और टेस्टी खाना देना है तो कुछ ना कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा। इनोवेटिव एफर्ट्स फ्रॉम क्वालिफाइड एंड स्किल्ड शेफ्स, वो आपको करना पड़ेगा। मतलब आप अपने शेफ्स को बोलो कि आप कुछ अपना इनोवेशन ट्राई करो, बिकॉज एज अ बिजनेसमैन यू आर नॉट एन एक्सपर्ट शेफ। तो आपको अपने शेफ्स को ऐसा पुश करना पड़ेगा कि आप एक काम करो, डिशेस में कुछ इनोवेशन लाने की कोशिश करो। सेग्रीगेशन ऑफ द मेन्यू इनटू वेरियस क्लासेस ABCD बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड पॉपुलैरिटी वुड हेल्प द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई फूड चॉइसेस। मैंने अपने मेन्यू को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब कस्टमर एक कैटेगरी में बहुत ज़्यादा ऑर्डर करता है तो मैं अपने शेफ को बोलूँगा ना, एक कैटेगरी में कुछ इनोवेशन करने की कोशिश कर तू। इनोवेशन हैज़ टू बी कॉन्स्टेंट एंड नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज, मतलब आपको बार बार करते रहना है, ठीक है। रेगुलरिटी ऑफ दिस इंट्रोडक्शंस एंड कस्टमर फीडबैक्स ऑफ द सेम। इंट्रोडक्शन मतलब आप कोई नया अगर कोई डिश लाते हो या नया कोई इनोवेशन लाते हो तो उसको रेगुलराइज करो, उसको बार बार दो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपको क्या करना है, अब बिल्ड अ रोबस्ट सप्लाई चेन। देखो मैंने बोला था कि मुझे अगर फ्लेक्सिबल होना है मटेरियल लेबर ओवरहेड में तो मुझे सप्लाई चेन में रोबस्ट बनना पड़ेगा, मुझे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे जिससे मेरा सप्लाई चेन रोबस्ट होगा। दैट कैन डील विद डिस्ट्रप्शंस is a very important for continuity of business operations as well as the future growth. For critical resources such as material, labor, overhead, the firm should have multiple partners. Appropriate investment in infrastructure in the kitchen, design and decor. ठीक है, मुझे अपने किचन में चेंजेस करने पड़ेंगे, मुझे अपने डिज़ाइन डेकोर में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ जाए। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मुझे अपने ऑर्डर्स को 15 मिनट्स में प्रोसेस करना है जिससे मुझे यूटिलाइजेशन रिसोर्स, जिसके लिए मुझे रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बहुत हाई एंड पे रखना पड़ेगा। हाई लेवल कोऑर्डिनेशन फॉर ऑर्डर टेकिंग एंड फूड डिलीवरी सिस्टम, उनका जो कोऑर्डिनेशन है, मतलब जो वेटर लोग होते हैं और शेफ़ का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत सीमलेस और हाई लेवल का होना चाहिए, ठीक है। शेफ्स हैव टू प्रिपेयर फूड इकोनोमाइजिंग कॉस्ट एंड मिनिमाइजिंग फूड वेस्टेज। अगर रॉ मटेरियल मेरा वेस्ट जा रहा है तो रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन है। राइट टूल्स इन द किचन टू मेक दिस हैपन, अच्छे टूल्स होने चाहिए साहब, अच्छे चाकू दो उनको, ठीक है। अप्रोप्रिएट किचन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन सपोर्ट दिस, प्रोवाइडिंग देम विथ अप्रोप्रिएट स्पेस, मशीन्स एंड टूल्स फॉर कुकिंग एंड स्टोरेज मस्ट बी नीडेड। मतलब सिंपल है, वेस्टेज ना हो उसके लिए टूल्स दो, किसको, शेफ्स को। बात समझ में आई? तो ये चार डिटर्मिनेंट्स हो गए, 4 डिटर्मिनेंट्स, क्वालिटी, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। 2 मेरे हो गए रिजल्ट्स। तो ये मेरा डायमेंशंस वाला पोर्शन खत्म हुआ। डायमेंशन मतलब मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि मुझे इन चीज़ों में इतना ग्रोथ चाहिए, इन 4 चीज़ों में 2 टाइप का ग्रोथ चाहिए, फिनेंशियल परफॉर्मेंस भी चाहिए और कॉम्पिटिटिव एज भी चाहिए। तो वो बोलेंगे एक काम करो, मेरे एम्प्लॉयज़ बोलेंगे मुझे स्टैंडर्ड सेट करके दो। तो स्टैंडर्ड्स में ओनरशिप होनी चाहिए। A clearly defined organizational structure with well-defined roles will help fresh food to assign authority and responsibility among its staff. Ajay in charge of restaurant operations, Biren in charge of finance and marketing, while Chand is having strategic decision, मतलब direction। मतलब देखो स्टैंडर्ड्स उनको एक्सेप्टेबल होने चाहिए कि भाई तुम हम जो स्टैंडर्ड्स दे रहे हो वो हमारे रूल्स के हिसाब से दे रहे हो और ये हमको एक्सेप्टेड है, ठीक है। वही बात है, ठीक है, वही बात है। अचीवेबल होने चाहिए, मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई लेवल के नहीं होने चाहिए जो अचीवेबल ही नहीं है। दे वुड नीड टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेंचमार्क एंड टारगेट, मतलब मैं जिनके लिए स्टैंडर्ड्स बना रहा हूँ उनको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे दूँ कि भाई ये आपके बेंचमार्क्स है, टारगेट्स है, आप बताओ क्या आप अचीव कर पाओगे या बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, ठीक है। और तीसरा इक्विटी, सबको इक्वल, किसी के साथ मैं बायस नहीं हो सकता, सबको इक्वल लेवल के टारगेट्स देने पड़ेंगे, इक्वली चैलेंजिंग टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। द रिगर ऑफ द टारगेट, रिगर मतलब टफनेस ऑफ द टारगेट शुड बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स, बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, ओनरशिप, इक्विटेबल, अचीवेबल, ठीक है। रिवॉर्ड कैसे होने चाहिए, जो मोटिवेशन जनरेट कर पाए। द परफॉर्मेंस मेजरमेंट इंडिकेटर्स हैव टू बी कम्युनिकेटेड एंड अंडरस्टूड बाय द स्टाफ,
ठीक है, मैं कैसे अपना जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहा हूँ वो सबसे पहले उनको बता दूँ कि ये आपके स्टैंडर्ड्स है, ये आपको अचीव करने हैं। शेफ्स कैन बी रिवॉर्डेड बोनस बेस्ड ऑन द टर्नओवर जनरेटेड बाय वेरियस कैटेगरीज ऑफ फूड चॉइस, ठीक है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी दे दो ताकि उनको मोटिवेशन रहे, ठीक है। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सिस्टम शुड एक्ट एज अ गुड मोटिवेटर फॉर ऑल ऑफ देम। क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी must for the staff to understand how their compensation package will be driven by various performance measurement metrics। मतलब आप उनको सब अपना परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम समझा दो अच्छे से, ठीक है। हाउ ईच ऑफ देम विल बी इंडिविजुअली कंपेंसेटेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेट्रिसेस, ठीक है। कंट्रोलेबिलिटी, मतलब rewards need not be only based on the financial element that the staff can control. There may be other non-financial element which for which rewards can be given। मतलब फॉर एग्जाम्पल कस्टमर है, वो फॉर एग्जाम्पल किसी शेफ़ की बहुत तारीफ करके गया, ठीक है, तो ये तो नॉन फाइनेंशियल है, तो उसके हिसाब से भी उसको रिवॉर्ड दो, अवार्ड दो, ठीक है, बेस्ट शेफ़ का अवार्ड दे दो वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीज़ें करने से भी उनको मोटिवेशन आता है। बोथ एस्पेक्ट हाउएवर नीड टू बी कंट्रोलेबल बाय द स्टाफ कंसर्न, ठीक है। एक शेफ़ की तारीफ की थी कस्टमर ने, दूसरे को गालियाँ दी थी, हम अवार्ड दूसरे को दे रहे, ठीक है, समझ रहे हो आप। जिससे मेरा स्टाफ का मोटिवेशन आएगा। देखो आपको लगेगा कि ये वाला जो पोर्शन है मैंने थोड़ा उड़ाया, देखो बात समझो। अगेन आप लोग रेस्टोरेंट बिजनेस के एक्सपर्ट नहीं हो तो इतना लंबा तो लिख नहीं पाओगे। दूसरा, मार्क्स तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल लिखने के हैं जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, और रिलेट करने के लिए मैंने आपको हाईलाइट कर दिए पॉइंट्स। अच्छा, अगर कोई नई केस स्टडी तो कैसे करोगे? सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का कंसेप्ट लिख लेना अच्छे से, ठीक है। फिर इसमें केस स्टडी में देखना कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिससे आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओ। आप डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये SCNPM की टिपिकल केस स्टडी है, टिपिकल केस स्टडी इसमें मिल ही जाती है, ठीक है। ये आपकी हो गई केस स्टडी नंबर 2 ऑफ RTP सीरीज 2, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए ध्यान रखो। मैं इस RTP के 5 वीडियोस ही डाल दूंगा, और ये जो RTP जो ये डॉक्यूमेंट रेफर कर रहा हूँ मैं अभी, ये है मेरा, मैंने RTP के क्वेश्चंस और RTP के आंसर्स को एक बार में कंबाइन कर दिया है, तो ये मैं आपको एंड में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, ये मैं मिटा रहा हूँ बिकॉज एनोटेशंस में अच्छे से आपको करके दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मिलता है नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जाओ बाय।